علاقے کی طرف سے مالی تعاون ہو رہا ہے اور ہر طرح کی جو امداد ہے انہوں نے دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ محمود اسعد مدنی کا بھی لیا ہے، اور بہت کم ایسا پروگراموں میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی اسٹیج پر یہ دونوں حضراتوں کو مدعو کیا گیا ہو۔ کیا اس کے مقاصد ہیں؟ اب سے پہلے ہمارے یہاں حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت تھے، انہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم کو یہ ذمہ داری سونپی ہے ان مسائل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، تاکہ ہم دنیاوی عدالتوں سے اپنے ان مسائلوں کو نہ لے جا کر کے اپنے شرعی جو عدالتیں ہیں ان میں ان کو ہم جا کر کے حل کروائیں۔ یہ ساری جو زمین ہے یہ تقریباً 8-10 کیلا ایکڑ میں یہ سارا پنڈال پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے جو تبلیغی ساتھی ہیں، تبلیغی جو احباب ہیں، انہوں نے ہر طرح سے قربانی دینے کی، ذمہ داری اٹھانے کی انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ ڈونیشن کے لیے نہیں ہے، وہ لوکیشن کے لیے ہے۔ اس تحریک کے تحت اور اس شعبے کے تحت شریعت کے جتنے شعبے ہیں وہ سب زندہ ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہو سب تشریف لائیں، سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں اس وقت موجود ہوں جھمراوٹ گاؤں کے اندر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برابر میں یہ مدرسہ ہے، جھمراوٹ کا مشہور مدرسہ ہے مادر العلوم جھمراوٹ، اور یہاں پر آنے والی 8 تاریخ کو یعنی 8 نومبر کو یک روزہ عظیم الشان امارت شریعہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایسے میں ہمارے ساتھ اس مدرسے کے منتظمین حضرات موجود ہیں، مدرسے کے کچھ ٹیچرز اور کچھ اساتذہ موجود ہیں۔ اسی پروگرام سے ریلیٹڈ ہم کچھ ان سے جانکاری لینے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے، کیوں اس پروگرام کو منعقد کیا جا رہا ہے، اور کون کون حضرات اس میں مدعو کیے گئے ہیں، علماء کے لیے کیا ویوستھا کی گئی ہے، اور آنے والی جو عوام ہوگی اس کے لیے کیا کچھ سہولیات کی گئی ہیں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ہم جاننے کی کچھ کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کچھ مدرسے کے اساتذہ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مولانا حسن صاحب، آپ کو MT نیوز انڈیا میں بہت بہت خوش آمدید کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے یہ یک روزہ عظیم الشان امارت شریعہ کانفرنس کا انعقاد آپ کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، تو کیا اس کے مقاصد ہیں، کیوں آپ نے یہ پروگرام آیوجت کیا ہے، کیوں اس کا انعقاد کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا یہاں آنا اور اس خبر کو لے کر کے عوام میں جانکاری دینا، اس کے لیے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ جہاں تک دوسری بات ہے آپ کی کہ اس عمارت کے انعقاد کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اب سے پہلے ہمارے یہاں حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ہریانہ، پنجاب، ہماچل کے جو علماء کرام تھے، انہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم کو یہ ذمہ داری سونپی ہے، اور سونپنے کے بعد میں سب سے پہلے فیصلہ کیا گیا کہ علاقۂ میوات میں خاص طور سے اور بالعموم راجستھان، ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چندی گڑھ میں اس عمارت شریعہ کی جو کارگزاریاں ہیں اب تک جو کی گئی ہیں، آگے جو اس کے کام کرنے کا طریقہ کار ہے، آگے جو ہم اس میں کام کرنے جا رہے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ اس کے مقاصدوں میں سے جو خاص جو مقصد ہیں، خاص جو موضوعات ہیں، ہمارے جو ایک ذاتی مسائل ہیں، جیسے خاص طور سے قرآن حدیث نے جو واضح فرمائے ہیں، طلاق کے، نکاح کے، خلا کے، وراثت کے، ان مسائل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، تاکہ ہم دنیاوی عدالتوں سے اپنے ان مسائلوں کو نہ لے جا کر کے اپنے شرعی جو عدالتیں ہیں ان میں ان کو ہم جا کر کے حل کروائیں، لوگوں کے سامنے یہ باتیں ہم واضح کریں۔ تیسری بات جو آپ نے یہ کہی ہے کہ ان میں کون کون حضرات مدعو کیے گئے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ جو امارت شریعہ ہے، اس کے جو امیر الہند ہیں وہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اس وقت میں انہی کی امارت میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور انہی کی امارت اور صدارت میں یہ امارت شریعہ پورے ہندوستان بھر میں کام کر رہی ہے۔ انہی کی سرپرستی اور انہی کی مہمان خصوصی کی آمد ہے، انہی کے اس میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرے جو اکابرین یہاں ہم نے مدعو کیے ہیں، ان میں جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود سید اسد مدنی دامت برکاتہم، حضرت مولانا سید سلمان صاحب منصور پوری جو نائب امیر شریعت ہیں، امیر الہند ہیں، اور حضرت مولانا سید اسجد مدنی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے ہیں۔ دوسرے علاقۂ میوات سے دارالعلوم محمد میل کھیڑلا کے جو صدر ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد راشد صاحب۔ اسی طرح جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل کے جو جنرل سیکرٹری ہیں حضرت مولانا یحییٰ کریمی صاحب، مولانا حکیم الدین حاجی رمضان صاحب، مولانا شیر محمد، مفتی زاہد وغیرہ، یہ جتنے اکابرین ہیں یہ سارے کے سارے رکن ہیں، ارکان ہیں اس امارت شریعہ کے،
वो सारे के सारे यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। उससे पहले चूँकि ये काम कर रही है 4 सूबे हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, इन चारों सूबों के जितने अरकान हैं वो तो तशरीफ़ लाएंगे ही। उनके साथ साथ में वहाँ के जो दीगर उलमाए किबार हैं वो भी यहाँ इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। देखिए जी, मौलाना ने अभी बताया कि कौन कौन लोग इसमें आ रहे हैं। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ सवालात करें, अभी मौलाना ने बताया कि मौलाना सैयद अरशद मदनी अहमद बरकातुहुमुल आलिया के अलावा जो दीगर अकाबिरीन और उलमा का नाम लिया, उसमें एक ख़ास नाम जो है वो हज़रत ने मौलाना महमूद असाद मदनी का भी लिया है। और बहुत कम ऐसा प्रोग्रामों में देखा जाता है कि एक ही स्टेज पर ये दोनों हज़रातों को मदऊ किया गया हो। तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि आपने दोनों जमीयत के सदर हैं, दोनों को एक साथ इस प्रोग्राम में मदऊ किया है, तो इससे भी कोई ख़ास आपका संदेश है लोगों को देने का? असल में जो अमारत शरिया जो हिंदुस्तान भर में काम कर रही है, चाहे वो हज़रात जमीयत से ताल्लुक़ रखने वाले हों, चाहे दीगर तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले हों, अमारत शरिया वो एक ही है पूरे हिंदुस्तान भर की, और एक ही हो करके उसमें सारे उलमा किराम काम करते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं? क्योंकि आवाम आएगी, लोग आएंगे तो गाड़ी बाइक का भी मसला होता है, पार्किंग का इंतज़ाम है, खाने का भी इंतज़ाम है। चूँकि जुमा से लेकर के इशा तक ये प्रोग्राम चलेगा, काफ़ी लंबा वक्त होता है, तो ऐसे में दूर दराज से भी लोग आएंगे, आसपास के मकामी लोग भी आएंगे, तो सभी लोगों के ताल्लुक़ से क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इंतज़ामात के ताल्लुक़ से जहाँ आप खड़े हुए हैं इस वक्त में, ये सारी जो ज़मीन है ये तकरीबन 8-10 किला एकड़ में ये सारा पंडाल फैला हुआ है। ये 60 बाई 40 का ये स्टेज को तैयार किया गया है हमने। खाने पीने के माकूल इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह रखे गए हैं। हमारे जो तबलीगी साथी हैं, तबलीगी जो अहबाब हैं, उन्होंने हर तरह से कुर्बानी देने की, ज़िम्मेदारी उठाने की उन्होंने वादा किया है और वो कर भी रहे हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी उनसे उम्मीद है कि वो सारे काम और इंतज़ामात को करवाएंगे। अच्छा, ये देखिए जी, अभी आपने अभी बता भी दिया है प्रोग्राम के ताल्लुक़ से। आपको बता दूं, वाज़ह कर दूं, ये आप देख सकते हैं पीछे ये स्टेज बनाया गया है प्रोग्राम के लिए। आप देख सकते हैं अभी इसको नया तरीक़े से इसको बनाया गया है, और आप जिस ज़मीन पर हम खड़े हुए हैं, जिस जगह पर, ये पूरा पिंडाल की जगह होगी। और ये बराबर में आप देख सकते हैं मदरसे के जो मुत्तसिल ये खेत आपको नज़र आ रहा है, इसमें खाने बनाने का इंतज़ाम किया जाएगा जिस तरह से मौलाना ने बताया। और उससे अगला जो खेत आप देख रहे हैं, इसमें खाना खिलाने का इंतज़ाम किया जाएगा। और सामने जो आपको नज़र आ रही है रोड से लगते हुए जो जगह है, इस जगह पर पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। तो आप कह सकते हैं चारों तरफ की पार्किंग है। तो एक तरह से जो अभी बताया गया है, जिस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इंशाअल्लाह किसी तरह के आने वालों को कोई दिक्कत और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल हम लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने एक इश्तिहार देखा होगा इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से, एक रोज़ा अज़ीमुश्शान इमारत शरिया कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से। तो मौलाना, उसी इश्तिहार के अंदर आपका एक स्कैनर QR कोड लगा हुआ है, तो वो किस लिए है? लोकेशन का है या फिर डोनेशन के लिए लगाया गया है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशन के लिए नहीं है, वो लोकेशन के लिए है। चूँकि लोग दूर दराज से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ से तशरीफ़ लाएंगे, उनको आने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो रास्ता मालूम करने में, इसलिए लोकेशन लगाई है हमने मदरसे की। ये कोई डोनेशन वगैरह के लिए स्कैनर नहीं है। सर देखिए, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैंने ये जो QR कोड है, लोकेशन QR कोड है, लोकेशन स्कैनर है, इसको मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। आप स्कैन करके इस जगह पर, इस लोकेशन पर आ सकते हैं। तो अच्छा मौलाना, ये आप इस प्रोग्राम की तैयारियों में मशगूल हैं। अभी मैं आ रहा था, मदरसे के सभी बच्चा बहुत जुनून के साथ इस प्रोग्राम की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, जिससे देखा जा सकता है कि मदरसे की इंतज़ामिया, मदरसे के स्टूडेंट्स को लेकर के जो जुनून है और इसको लेकर के जो खुशी है, वो उनके काम काज से आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये इलाके के लोगों की कैसा इस प्रोग्राम से कोई सपोर्ट मिला है आपको, गांव के लोगों का, इलाके के लोगों का, या आपने फिर किसी से सपोर्ट लेने की कोशिश की ही नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो काम हो रहा है, इसमें जहाँ तक ख़र्चे की बात है, मदरसे का ना अब तक इसमें कुछ खर्च हुआ है और ना आइंदा इस तरह का कोई इरादा है, क्योंकि मदरसों के पास इस तरह के बजट नहीं होते। इलाके की तरफ से माली ताउन हो रहा है और हर तरह की जो इमदाद है उन्होंने देने का वादा भी किया है, और वो सारे अखराजात को वही बर्दाश्त कर रहे हैं। खाना पीना, हर तरह की जो ज़रूरत हैं, इंशाअल्लाह वो सब पूरा करेंगे कुर्ब जवार के जो साथी हैं हमारे।
अच्छा, तो ये थे मौलाना हसन साहब और मेरे साथ दीगर असातिज़ा भी मौजूद हैं और ये हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती यूसुफ साहब नाटोली जो एक मशहूर कलमकार भी हैं। तो मौलाना आप मुफ्ती साहब किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या आप खुशी से महसूस कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से क्या आपके जज्बात हैं, क्या अरमान हैं, लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, ख़ास करके उलमा अइम्मा जो तबका है उससे आपकी क्या अपील रहेगी इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से? हज़रत मौलाना साहिब साहब, आपका शुक्रिया, आपने यहाँ आकर हम सबको ये मौका दिया बोलने का। दरअसल इमारत शरिया कॉन्फ्रेंस जो हो रही है ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। तकरीबन 15 और 20 हज़ार के दरमियान लोग यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और उलमा की बड़ी तादाद है, लेकिन आवाम को ज़्यादा बुलाया गया है, उनको मदऊ किया गया है। इसी वजह से इश्तिहारात और दावतनामे आम किए गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इमारत शरिया का प्लेटफार्म बहुत आम है। इस तहरीक के तहत और इस शोबे के तहत शरीयत के जितने शोबे हैं वो सब ज़िंदा होते हैं। कोई भी शोबा शरीयत का ऐसा नहीं है जो इमारत शरिया से अलग जाता हो। इसी वजह से अमीरुल हिंद जो होता है, पूरे मुल्क का जो अमीर होता है, उसके तहत पूरे मुल्क के तमाम शोबे ज़िंदा होते हैं, ज़िम्मेदारी होती है उसकी। और अमीर शरीयत सूबे का होता है। इत्तिफ़ाक़ ये है कि हमारे 4 सूबे हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, इन 4 सूबों का एक अमीर बन गया है। तो उस अमीर की हमारे मोहतमिम साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास दामत बरकातुहुमुल आलिया, वो अमीर शरीयत के हैसियत से इन 4 सूबों में काम कर रहे हैं और करने का जज्बा रखते हैं। कोई भी शोबा हो, दावत व तबलीग का शोबा, दर्स व तदरीस का शोबा और मामलात का शोबा, लोगों में ज़ौजैन के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं, तलाक़ के मसाइल हैं, फ़स्क़ के मसाइल हैं, विरासत के मसाइल हैं, ये तमाम मसाइल और तमाम शोबे इमारत शरइया के तहत ज़िंदा होते हैं। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि लोग आएँ और जो मुल्क के अमीरुल हिंद हैं हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनका जो पैगाम हो, उनकी जो बातें हों, वो कौम को जो कहना चाहेंगे वो सब लेकर जाएँ और उस पर फिर अमल करें और शरीयत के तमाम शोबों को ज़िंदा करें। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को यहाँ पहुँचने में? चूँकि ज़ाहिर सी बात है इंतज़ामिया की तरफ से अगर मैसेज मिलता है तो बहुत कुछ उनको मदद मिलती है आने में, तो क्या अपील रहेगी आपके लोगों से? हमारी अपील यही है कि जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो, दावतनामों के ज़रिए पहुँची हो, वो सब तशरीफ़ लाएँ, सबका खैर मकदम है। हमने यहाँ सब के लिए हर तरह की सहूलियात का इंतज़ाम किया है। ये आप बता रहे थे पार्किंग का जो निज़ाम है, इधर से जो गाड़ियाँ आएंगी, बाइक वगैरह जो भी कुछ, उनका निज़ाम यहाँ होगा और इधर रास्ते से जो बाइकें आएंगी, गाड़ियाँ आएंगी, उनका इंतज़ाम पार्किंग का उधर रखा गया है। तो ये सारे इंतज़ाम सहूलियात के लिए किए गए हैं। हम यही चाहते हैं कि आप सब हज़रात जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इश्तिहारात को पढ़ रहे हैं, वो सब तशरीफ़ लाएँ, हम सब का खैर मकदम करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कुछ और असातिज़ा भी मौजूद हैं। हम ये लोगों से अपील करते हैं कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, हम आप सबका खैर मकदम करते हैं। तो ये थे मेरे साथ मदरसा मादरुल उलूम झमरावट के कुछ असातिज़ा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम को जो आयोजित कर रहे हैं वो यही लोग हैं और अमीर शरीयत हज़रत मौलाना इलियास साहब जो इस मदरसे के मोहतमिम हैं, संचालक हैं, उन्हीं के ज़ेर सरपरस्ती में ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। एक मरतबा फिर आपकी सहूलत के लिए बता दूँ, ये पूरा स्टेज है जहाँ पर उलमा किराम तशरीफ़ फरमा होंगे। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये पिंडाल है और इस जगह आप देख सकते हैं मदरसे के जो मुत्तसिल ये जगह है, यहाँ पर खाने के बनाने का नज़म किया गया है और उससे जो अगला खेत और ये अगली ज़मीन दिख रही है, यहाँ पर खाने खिलाने का नज़म किया गया है। और उससे अलावा आप देख सकते हैं ये दिल्ली मुंबई हाईवे है मुत्तसिलन और इसी से के नीचे से होते हुए यहाँ एक लोकल रोड गुज़रता है, उसी के बिल्कुल मुत्तसिल जो ज़मीन है वहाँ पर पार्किंग का नज़म किया गया है। इसके अलावा ये तो वो जगह है फ्रंट पर जो हम आपको दिखा रहे हैं। पार्किंग के ताल्लुक़ से मुंतज़मीन का कहना है कि चारों अतराफ़ से जहाँ से भी लोग आएंगे सब के लिए, बाइक्स हों या गाड़ियाँ हों या जो भी उनका वाहन हो, सब के लिए पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की गई है। किसी तरह की कोई परेशानी और दिक्कत का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए पेनंगवा की तरफ से, पुन्हाना की तरफ से या कहें कि होटल पलवल की तरफ से आप दिल्ली बम्बई हाईवे के नीचे से होते हुए इस रोड से आ सकते हैं। उधर ही पार्किंग का नज़म किया गया है। इधर आप मदरसे की ये देख सकते हैं इमारतें हैं। इसके उस तरफ से अगर आप आएंगे तो इधर फ़िरोज़पुर झरका की तरफ से आप आ सकते हैं, उधर भी पार्किंग का नज़म किया गया है। और बिल्कुल स्टेज के पीछे आप देखेंगे तो ये एक सड़क है, उधर गाड़ी भी खड़ी हुई है। ये है जो
होडल रोड पर जो मरोड़ा गांव पड़ता है, मशहूर गांव है, वहां से होते हुए ये सीधा इधर फिरोजपुर की तरफ निकलता है। तो बहरहाल मदरसे के चारों अतराफ में जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, बेहतरीन उनका इंतज़ाम है, अच्छे सड़कें हैं, अच्छा रोड्स हैं। तो इसलिए आने में किसी को दिक्कत और परेशानी का सामना सड़क से तो है ही नहीं, लेकिन पार्किंग के एतबार से भी अच्छा नज़म किया गया है। तो बहरहाल ये कुछ अपडेट हमने आपको इस ताल्लुक़ से पहुंचाने की कोशिश करी है। आपसे गुजारिश है कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग शरीक हो सकें, यहाँ जमा हो सकें और कायद मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी का जो भी पैगाम हो उसको आप यहाँ सुन कर के जाएँ, उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।